سیب کا سرکہ کوئی ایسا گھر نہیں جس میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیب کے سرکے میں چھپی طبی خصوصیات کیا ہیں؟ کیا آپ واقعی سیب کا سرکہ استعمال کر رہے ہیں جسے آپ سرکہ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیب کے سرکے کے طبی خواص کیا ہیں اور یہ آپ کو کس طرح فائدہ دیتا ہے، آپ کی صحت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف معالج ڈاکٹر زوبیہ شفیق۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سیب کا سرکہ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے کتنا مفید ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ سرکہ سیب جو ہے جسے ایپل سائڈر ونیگر کہا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں عموماً استعمال ہوتا ہے، مختلف ریسپیز میں استعمال ہوتا ہے، کچن ریسپیز میں استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ان کے کچن میں پڑی یہ چھوٹی سی بوتل جو ہے نا، ان کے لیے صحت کا خزانہ کیسے بن سکتی ہے، اس کے طبی خواص کیا ہے۔ اچھا ٹاپک ہے۔ اگر ہم سیب کے سرکے کی بات کریں یا کسی بھی اس ٹریٹمنٹ کی بات کریں جو آپ کے کچن میں موجود ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کب، کیسے اور کس سچویشن میں استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم ایپل سائڈر ونیگر کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ سیب کے سرکے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑا اور موجودہ دور کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتلا کرنے میں، یعنی کہ اگر آپ ڈائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ خود کو جو ہے وہ اپنی باڈی کو شیپ ان کرنے کے لیے لانا چاہ رہے ہیں، شیپ میں لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو سوٹ کر جاتا ہے، اب سوٹ کرنے میں سیب کا سرکہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور سوٹ کرنے میں اس کی سب سے بڑی، اگر آپ سرکے کی بات کرتے ہیں، کافی کی بات کرتے ہیں، کیفین کی بات کرتے ہیں، لیمن کی بات کرتے ہیں، جو سٹرس جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹامک کو یہ میچ اپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ رائٹ، میچ اپ کر رہی مطلب اگر آپ سرکہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سارا دن کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، اچھا، آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں تو آپ کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ کو متلی آ رہی ہے، آپ کو وامٹ سی فیل ہو رہی ہے، تو اٹس مین کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا۔ لیکن اگر وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی، آپ ہرب یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ اپنے کچن میں پڑا ہوا انگریڈینٹ یوز کرتے ہیں، تو وہ آپ کو 2 سے 3 دن میں آپ کے سامنے ایک پکچر لے آتا ہے۔ اچھا، اس پکچر میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، فیل کروا دیتا ہے کہ یہ سوٹ کر رہا ہوں میں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس پکچر کو آپ نے خود پہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ مجھے اگر یہ ایشو ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ایشو ہو رہا ہے۔ تو سیب کے سرکے میں بے شمار فوائد ہیں۔ آپ کے منہ سے اگر اسمیل آ رہی ہے تو وہ بیڈ بریتھ جو ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، وہ آپ اگر تھوڑا سا پانی میں سرکے کو ملا کر اس کی کلیاں کرتے ہیں نا، تو آپ کے منہ سے اسمیل آنا بند ہو جاتی ہے۔ آپ کو جیسے میں نے کہا کہ اسمارٹ کرنے میں بہترین، آپ کے چہرے پہ جو رنکلز آ جاتے ہیں، جو بڑی بلوٹنگ سی ہوتی ہے، آپ کو یہ سوٹ کر جاتا ہے تو آپ کے چہرے کو فریش لک دیتا ہے، اچھی لک دینا شروع ہو جاتا ہے۔ چہرے پہ فریش اپلائی، براہ راست اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ یہ میں پینے کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، پینے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پیئیں گے تو بھی آپ کو گلو دے گا چہرے پہ۔ آپ کی ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کی گٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور آپ کی خوبصورتی کو انہانس کرنے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 60% آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا پی رہے ہیں، اور 40% وہ ہوتا ہے جو آپ لگا رہے ہیں، جو ایکسٹرنل ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ کی انٹرنل ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ 60% ہے، اور آپ کی ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 40% ہے۔ اور ہمارا تو خیال آج کل لگتا ہے کہ پورا ایکسٹرنل پہ ہی ہے ڈیپینڈ۔ 90% ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ پہ۔ پھر اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنوارنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو سنوارتے رہتے ہیں وہ سنورا رہتا ہے، جیسے ہی ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ اوپر کا پینٹ اتر جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ جب پینٹ اترتا ہے نا تو وہ پھر اصل لک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی یہ ہم ایکٹریسز کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی فیمس پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، نارمل تو ہم اتنا چیزیں غور نہیں کرتے، یا ہماری فیملیز میں کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ پہلے تو ایسے تھا، ایک دم سے ایسے ہو گیا۔ اچھا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ چیز چھوڑی، لائک ڈائی لگانی چھوڑی اور ایک دم سے وائٹ بالز سارے آ گئے۔ آپ نے
आपने कोई क्रीम लगानी छोड़ी, आपके चेहरे पे झाइयाँ बनना शुरू हो गई, आपके पिंपल्स बनना शुरू हो गए, आपका कलर कंप्लेक्शन बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया। तो आप जब कुछ चीज़ें खा रहे होते हो ऐसी, वो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए। सेब का सिरका जो है वो आपके स्टमक के लिए, आपकी ब्लॉटिंग के लिए, आपके फेस के लिए, आपके स्लिम रहने के लिए, आपकी बैड ब्रीथिंग के लिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ भी ये जैसे आपने बताया कि ये बहुत मुफीद चीज़ है, इसका मिजाज एसिडिक होता है, तो ये कोई ऐसे लोग कौन से होंगे जो इसको इस्तेमाल ना करें, उनके लिए ये फ़ायदेमंद ना हो, क्योंकि एसिडिक है ना? एग्जैक्टली। एच पाइलोरी का जिनको मसला है, अच्छा, जिनको जो है वो आईबीएस का प्रॉब्लम है, राइट, उसमें ऑलरेडी क्या होता है कि आपकी मेदे की जो दीवार होती है, उसकी जो वॉल होती है वो डैमेज हुई होती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है ऑलरेडी, और वो एसिड इतना डेंजरस होता है कि नॉर्मली आप किसी चीज़ को लाइक आप पीतल को भी उसके अंदर डाल देते हो ना तो वो पिघल जाता है। अच्छा, इतना डैमेज एग्जैक्टली। तो वो आपकी जो लेयर होती है वो ऑलरेडी डैमेज होती है, एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। एसिड प्रोड्यूस होता है तो आपको पता है कि आपका खाना जो है वो हजम होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वर्किंग प्रोसेस में चल रही होती है। अब ऑलरेडी आपका मैदा जो है वो तजाबियत उसमें बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली, उसमें आपकी तजाबियत बहुत ज़्यादा है, उसमें ऑलरेडी वॉल्व जो है वो डैमेज हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप सेब का सिरका या कुछ भी एसिडिक जिसकी तासीर आप कह लो, हाँ जी, आप उसका बैकग्राउंड कह लो, उस फैमिली से वो बिलोंग करती है, जब वो लगाएंगे तो वो डैमेज कर देगी उसको, वो बहुत पेनफुल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं एज के साथ साथ जैसे एज बढ़ती जाती है ना, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है, जैसे अभी आपने गट हेल्थ की बात की है, वो बड़ा स्लो हो जाता है, उनके मैदे में तजाबियत कम हो जाती है। हाँ। उनके लिए सिरका कितना मुफीद है? उनके लिए बहुत मुफीद है। लाइक जैसे मैंने हम अभी बात की ना कि अगर एक वो होता है कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, एक है कि एसिड बिल्कुल कम हो गया, उसमें क्या होता है कि आपको चीजें हजम नहीं हो रही होती। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसमें आप अगर इस तरह की एसिडिक प्रॉपर्टीज को साथ में शामिल करते हो तो आपकी गट हेल्थ पे बहुत अच्छा वर्क होगा। अब क्यों कहते हैं कि ये पतला कर देता है, अगर आपको ये सूट करे तो पतला किस तरह से करेगा, वो आपकी गट हेल्थ पे वर्क करेगा। अच्छा। आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, और जब मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा तो ऑलरेडी आपका फैट जो बर्निंग प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगा, और बर्निंग प्रोसेस जब ठीक होगा वो चर्बी जो है वो पिघलाएगा, वो पिघलना शुरू होगी। नॉर्मल वर्डिंग में अगर हम यूज करें अपने सुनने वालों के लिए, तो वो एक चर्बी होती है ना, उसकी तहें जम जाती हैं, वो फैट जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये सिरका आप वहाँ पे जाता है, उसको एब्जॉर्ब करवाता है, उसको पिघलाता है, तो वो लेयर जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि उन लोगों के लिए उनकी स्टमक को ठीक करने के लिए उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर अच्छा डॉक्टर साहब, सिरके की थोड़ी सी ज़रा पहचान भी बताते जाएं। मार्केट में ना कई तरह के सिरके मौजूद होते हैं, आम आदमी जो है वो जो वाइट सिरका होता है सिंथेटिक, उसको भी सिरका समझ रहे होते हैं। नहीं, वो जो वाइट सिरका होता है वो सिरके की सबसे बड़ी पहचान ये थोड़ा येलोइश कलर में होता है। अच्छा, गोल्डनिश कलर में होता है ना। इसके ऊपर जो सेब का सिरका आप लोगे उसके ऊपर सेब बना हुआ होगा जी, या इसकी प्रॉपर्टीज इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ सेब होगा, उसमें सेब बना कोई इंग्रेडिएंट, हाँ जी, उसकी ही प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। ये जो वाइट कलर का सिरका होता है ये एन अदर फॉर्म ऑफ सिरका, ये वो वाला सिरका होता है। एग्जैक्टली। तो सेब का सिरका, अब कुछ लोग इतने होशियार होते हैं, जब हम बात करते हैं कि सेब बना हुआ होता है, वो अपनी एक प्रिंटिंग करवा के लेबल लगा और उसमें कलर जो है वो कर देते हैं। अच्छा। तो इसकी ये होता है कि इसको आप जब पीते हैं तो इसकी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। अच्छा। हल्का सा तुर्श भी होता है, हल्का सा जो होता है वो स्मेल कर रहा होता है ये। अच्छा। तो ये इसका वो होता है। अक्सर आप जब उसको देखते हो तो उसका जो पेंदा होता है उस बोतल का, वो थोड़ा सा इतना ज्यादा क्लियर नहीं आपको नजर आता। वो उसका यानी फिल्टर नहीं होता, इसलिए उसके अज्जा नीचे जो है नजर आ रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो होता है वो इसको, बाकी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे रेंज में ये चीज़ें कर रही हैं, तो वो आप देख लें कि कौन सी कंपनी, हम स्पेसिफिक तो नहीं नाम नहीं ले सकते हम, तो वो आप देख लें कि कौन सी अच्छी बनाती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दें, क्योंकि ये एसिडिक होता है, ये भी कहा जाता है ना कि इससे मसूड़े या दांत जो होते हैं उनकी जिनका एनिमल जो है वो ऑलरेडी
उसमें ये है कि स्ट्रॉ के साथ आप यूज़ करें। अच्छा। और हमेशा अक्सर आप करें जिनको ये खदशा है वो भी और जिनको खदशा नहीं है वो भी। अच्छा। लेकिन एक चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके दांतों की लेयर के लिए अच्छी नहीं है। जिनके ऑलरेडी दांत जो हैं वो येलोइश हैं या उनका एनिमल जो है वो कमज़ोर है, तो वो क्या करें, वो स्ट्रॉ के साथ उसको स्ट्रॉ के साथ पिएं उसको टेक करें और उससे जो है वो ये ठीक है। दूसरा ये है कि आपने 1 गिलास पानी लिया, नीम गरम थोड़ा सा, कोशिश करें ये ना होगा आप बहुत ठंडे पानी में जो है वो इसको मिक्सअप करके, उसका फायदा नहीं होगा। कुछ चीज़ें की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो जिस तरह से होती हैं उस तरह से ही आपको लेनी होती हैं। अगर आपने उनका प्रॉपर जो है वो बेनिफिशियल चाहते हैं कि वो होनी चाहिए, तो उसमें आप ये करेंगे कि आप एक वार्म वाटर लेंगे 1 गिलास, उसमें 2 चम्मच जी एप्पल साइडर विनेगर डाल देंगे। आप इसको डायरेक्ट नहीं कभी भी लेंगे जी। होता है ना कि आप चम्मच के साथ डायरेक्ट चम्मच लिया और अच्छा नहीं वैसे नहीं लेना। अक्सर लोग कहते हैं के अंदर जाके जो है ना वो मिक्सअप हो जाएगा खुद ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप वार्म वाटर में 1 से 2 चम्मच आप उसके डालें। अगर आप इसको सुबह के टाइम पे यूज़ करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है सुबह के टाइम पे, बिकॉज बहुत सारी सेक्रेशंस हो रही होती हैं और बहुत सारे जो हैं वो मेटाबॉलिज्म का एक वर्किंग प्रोसेस सारे दिन में चलना होता है। आपकी भूख को सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लाइक जैसे हमने बात की कि आजकल के वो लोग जिनको डाइट कॉन्शियस है, जो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं और जवान लगना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ये तो बहुत ज्यादा होता है कि यार मेरी एज इतनी हो गई है। अच्छा। तो यानी एंटी एजिंग में भी ये बड़ा फायदेमंद होता है। आपके चेहरे को जो है वो ग्लो देता है, उसकी लाइनिंग को खत्म करता है, फ्रेशनेस लाता है। डेफिनेटली जब फ्रेशनेस होगी, ग्लो होगी, रिंकल्स खत्म होंगे, पिंपल्स के ऊपर वर्क करेगा, तो आपका चेहरा जो है वो यंगेस्ट भी नजर आना शुरू होगा। तो उसमें ये है कि आप वार्म वाटर में आप सुबह के टाइम कोशिश करें कि इसको इनटेक करें। 1 गिलास इनफ है। कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपकी कॉफ़ी है, उसमें आपका सिरका है या आपका कोई भी वो मेटाबॉलिक ड्रिंक है जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको एक हद से ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो चलो इसको मैं 4 गिलास 5 गिलास 6 गिलास पी लूँ। अच्छा, एक हद से ज़्यादा जब तजावज़ चीज़ें कर जाती हैं, वो चाहे आपकी बेहतरी की हों, वे एक्सेस रेंज में जब चली जाएंगी तो वो आपके लिए नुकसानदेह होंगी। एग्जैक्टली। जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर ज़ूबिया शफीक, जिन्होंने आज सेब का सिरका जिसे एप्पल साइडर विनेगर जो है वो कह रहे हैं हर घर में मौजूद है, उसकी पहचान भी बताई और फिर उसका तरीका इस्तेमाल भी बताया और बताया कि कहाँ कहाँ पर वो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। अगर आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के बयान किए गए तरीक़ा कार के मुताबिक उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आइंदा किसी और टॉपिक के साथ। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।